वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल JEX। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशंस विच इज फ्रॉम ICSE क्लास 9। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की जरूरत है विच इज रिटन इन द बोर्ड। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आइदर यू कैन ओपन पेज नंबर 68 ऑन ML Agarwal बुक। सो दीज आर सम कॉमनली यूज्ड आइडेंटिटीज। आप इसे लर्न कर सकते हैं या आपके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट इज a plus b whole square which gives a square plus b square plus 2ab. Okay, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. a square minus b square, a plus b into a minus b. अब ये जो फॉर्मूला है a plus 1 by a का होल स्क्वायर, its derivation is like that first it is a square plus 1 by a square, then 2a into 1 by a, which comes finally 2. Similarly, a minus 1 by a का होल स्क्वायर gives a square plus 1 by a का होल स्क्वायर and minus 2 into 1 by a into a minus 2. Okay, and a square minus 1 by a square gives 1a plus 1 by a into a minus 1 by a. Finally, the formula which contains abc whole square, so it is a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ca. So अभी हम लोग स्क्वायर्स पे कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्यूब्स के फॉर्मूला पढ़ेंगे एंड क्यूब्स के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो अब आप इस पर एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने फॉर्मूला दिया था a प्लस बी होल स्क्वायर के ऊपर रिलेटेड है ये, एंड ये सेकंड वाला a माइनस बी होल स्क्वायर के ऊपर रिलेटेड है। तो मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, 2x whole square plus 7y whole square plus into 2x into 7y. The result comes 4x square plus 49y square plus 4 into 7, 28xy. I hope this is the answer you got. Okay. Now comes to the second question, which is a square plus b square minus 2 times a into b, which is 9x square plus 16y square minus 624xy. So these are the answers of the two questions and you can match it. So you can solve this question by two ways. Either you can use the formula of a plus 1 by a whole square and a minus 1 by a whole square respectively, or you can use the formula a square plus b square plus 2ab and a square plus b square minus 2ab. In both the ways the answer will come same, so you can use it. Now I wish that you will try on your own. So I hope that you have tried the question. Now you can see the solution. So first I am solving by the basic formulas. I know the formulas of a plus 1 by a whole square and a minus 1 by a whole square. Its formula is given by a square plus 1 by a square plus 2. His formula is given by a square plus 1 by a square minus 2. Okay. Now opening the brackets, we get a square plus 1 by a square plus 2 minus of a square minus of 1 by a square, and here minus into minus become plus, so plus 2. Okay, then a square gets cancelled by a is minus a square, 1 by a square gets cancelled by minus 1 by a square. So the answer comes 4. I hope you have tried this question and you got the answer 4. अब आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटता हूँ, you can try on your own. This question is done by using the formula a plus b plus c whole square, and its formula is given by a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ca. Now applying this formula on this question, we get 4x square plus 9y square plus 16z square plus 2 times 2x into 3y plus 3y into 4z plus 4z into 2x. Okay. Now solving it, we get 4x square plus 9y square plus 16z square plus 6x plus 2 times
6xy plus 12yz plus 8zx. Okay. Now we get 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy plus 24yz plus 16zx. So this is the final answer. I hope you have got the answer and you can match it by my answer. Now this question is there which can be solved by a square using the formula a square minus b square. ठीक है. So आप एक बार इसे अपने खुद से ट्राई कीजिए. मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से. So मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किसका स्क्वायर है एंड ये किसका स्क्वायर है. ओके. So I am giving you a hint. This is a homework question. Okay. I wish you will answer this in the comment section. अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, आपको इसे आइडेंटिटी से बनाना है एंड आपको सोचना है इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. तो मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा एंड मैं इसे अभी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सॉल्व करूंगा ऐसे ब्रेक करके. दैट इट इज 10.2. सो 10 प्लस 0.2, तो ये 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन गया. ठीक है. एंड इसका फॉर्मूला हमें आता है which is a square plus b square plus 2 times a into b, which can be given as 10 का स्क्वायर plus 0.2 का स्क्वायर plus 2 times 10 into 0.2. Now 0.2 can be also written as 2 by 10. So for convenience you can use this, or else you can directly do the square of 0.2. Okay. So this is 100. This is 2 by 10 square. This is plus 2 into 10 into 2 by 10. Okay. This is 100 plus 1 by 25 plus 4 equivalent to 104 plus 1 by 25. Now you can leave your answer till there, or you can evaluate by multiplying and taking the LCM. Okay. Now 1 by 25 can be written as 0.04. Okay. So we will add it 104 plus 0.04, which is equivalent to 104.04. This is the final answer. तो अब मैं स्क्वायर्स के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ. तो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं पॉज करके. ठीक है. एंड पहले मैंने जानबूझ के बेसिक्स क्वेश्चन कराया था ताकि मैं उन बच्चों को भी कैटर कर सकूं जिनको मैथ्स से डर लगता है या उन्हें मैथ्स पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है. इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था. And now some good illustrations are there. Okay, so you can try it. ठीक है. तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा. नहीं तो आप मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. फिर भी मैं आपको कहूंगा एक बार आप 3-4 बार अटेम्प्ट करते रहे. कम से कम मैथ्स के क्वेश्चन में आप अगर आपके एक बार में नहीं भी बन रहे हो तभी आप 3-4 मल्टीपल टाइम्स यू कैन ट्राई इट. ओके. सो नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन. सो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला x माइनस y का होल स्क्वायर. सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट नो इट. x minus y whole square is equal to x square plus y square minus 2xy. So यहाँ पे हमें x minus y का वैल्यू दिया हुआ है, हमें xy का वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है x square plus y square. ठीक है. तो x minus y is equal to 8. So 8 square is equal to x square plus y square minus 2 times xy. Value of xy is 5. Okay. There comes 64 is equal to x square plus y square minus 10. So value of x square plus y square is equal to 64 plus 10, which comes 74. Hence 74 is the final answer. मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आपने भी इसे सॉल्व कर लिया होगा. अगर आपने नहीं भी सॉल्व किया तो कोई बात नहीं, आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं. तो ये अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व कीजिएगा एंड आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए. a स्क्वायर प्लस 4a प्लस x इज इक्वल टू a प्लस 2 होल स्क्वायर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए. ठीक है. तो मुझे एक्सपेक्ट है आपने सॉल्व कर लिया होगा एंड अगर आपने नहीं भी किया है तो आप सॉल्व कर ली, अब मेरा आंसर देख सकते हैं. ठीक है. बट आप ट्राई कीजिए, पहले 4-5 बार आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि आपका मैथ्स का, अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा कि मैथ्स का डर रहता है. अगर आपको मैथ्स का डर निकालना है तो आपको लिटरली एक ही क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा
एंड 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर 3-4 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे. ओके, एंड एक बार आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर ये टाइम बहुत कम हो जाएगा आपका, एंड आपको मैथ्स में मजा भी आने लगेगा. तो आप मेरी सजेशन को मानिए, आराम से ट्राई कीजिए, 3-4 अटेम्प्ट दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस है, एंड आपका इससे बहुत बेटरमेंट होगा. नहीं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं. ओके, सो मैं अभी से सॉल्व करने जा रहा हूँ. सो हमें पता है ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म का है. इसका फॉर्मूला में भी लिख देता हूँ साइड में. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab. ओके, तो आपको यहाँ फॉर्मूला का एंड दिख रहा होगा, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए एंड यू कैन सॉल्व द आंसर. ओके, नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस 4a प्लस x इज इक्वल टू, वी आर एक्सपैंडिंग दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो अब इसे एक्सपैंड करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू a. ओके, देन दिस कम्स a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस x. सो यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूँ. x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a. तो यहाँ से प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी आंसर आया होगा एंड आपने इसे आराम से सॉल्व कर लिया होगा. नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्म. नाउ अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1/x. सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फर्स्ट. So I am writing the formula first. Okay. X minus 1/x whole square is equals to x square plus 1/x square minus 2 times x into 1/x. Okay. Now we know the value of x square plus 1/x square, which is 27, minus 2 times x into 1/x, it cancels and it becomes 27 minus 2, which is equals to 25, and x minus 1/x का whole square is equals to 25. So we can get x minus 1/x value as plus minus 5. Okay. So आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. एक बार स्क्रीन पॉज करके मैं हट जाता हूँ, नहीं तो इसका सॉल्यूशन मैं भी देता दूंगा. आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, नहीं तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं. ठीक है, बट पहले आपको 4-5 बार कम से कम ट्राई करना है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन बाय द फॉर्मूला a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ca. मैं फिर भी एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, हो सकता है इनकेस किसी ने नहीं देखा होगा. तो a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ca. तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 125 एंड ab प्लस bc प्लस ac का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 50. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca विच इज 50. इट बिकम्स a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 प्लस 100 विच गिव्स 225 and a plus b plus c is equal to plus minus under root में 225 and we know that the root of 225 is 15, so the value is plus minus 15. So students, this was the last question of our today's class and मैं एक प्रैक्टिस सेशन लूंगा लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का, जहाँ पे हम बहुत अच्छे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे अच्छे बुक्स के. फॉर एग्जांपल ML अग्रवाल, पियर्सन एंड ऑल, एंड अच्छे कोचिंग मटेरियल्स के मॉड्यूल से भी मैं आपको इसके टॉप लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा. इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले क्यूब्स का पूरा सेशन लूंगा अच्छा सा, जैसे आज स्क्वायर्स का लिया है. मैंने बहुत कम टाइम पे कोशिश किया कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूं, एंड आप प्रैक्टिस के लिए ML अग्रवाल बुक रेफर कर सकते हो. इस पे आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं क्यूब्स कराऊंगा, एंड थर्ड क्लास में मैं वैसे भी एक 30 to 40 मिनट प्रैक्टिस सेशन लूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा. तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड होकर आना है प्रैक्टिस सेशन के लिए, एंड आपको अपनी पूरी ML अग्रवाल की बुक की सारे एक्सरसाइजेस अभी तो आप सॉल्व मत कीजिए, पहले मैं क्यूब्स पढ़ा दूंगा फिर आप सॉल्व कीजिएगा प्लस एग्जाम्पल्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.